So, very good morning to all my lovely viewers. Today, on a Sunday morning, we have an amazing guest with us, Mr. Milind Shraddha, and he's going to tell a lot about himself, and we'll get to know a lot about him. So, let's just start with the amazing guest. Hi everyone. So this is Milind here, and it's been a privilege today being here and being here on a Sunday morning. Had to wake up a little early for me, and yeah. So I'm the founder of Grab Loyalty. So it's a Lucknow-based startup. So I started around in 2015 in Lucknow. So this was when I came back from Mumbai, and now it's been almost 6 years, and yeah, it's going good. And so we are dealing in a lot of things, starting from point of sale, softwares, and then digital marketing and a lot of other solutions. So yeah, it's gonna be fun talking to you today. Yeah, over to you. Thank you, sir. Sir, actually, today we are going to know a lot about you, your childhood, your friend circle, your upbringing, how you used to be as a child, how you have grown up to become, and what you want to achieve in your life. And we'll discuss all of it in a very Bollywoody style because we are a little fond of Bollywood, like we all know. So we'll start with that. So let's begin with in a Bollywood style. We'll play a kind, not like a contest or a game. We'll get to know you a little more sequentially with Bollywood style. So we'll begin with a phrase छोटी छोटी बातों से है यादें बनी, which means कि आप बचपन में कैसे थे, आपकी बचपन की कहानी, बचपन में आप कैसे हुआ करते थे, आप क्या शरारतें करते थे, आपके नॉस्टैल्जिक कुछ मेमोरीज, कुछ प्रैंक्स, कुछ भी. We'll love to know a lot about that. So बचपन बचपन तो मतलब अभी भी मेरा बचपन है मतलब बट बचपन में तो आई वाज एक्चुअली मतलब मैं काफी ज्यादा चेंज हो गया हूँ अभी जो मेरे को मेरी फैमिली बताती है कि मेरा एक बड़ा भाई भी है। अब मैं छोटा मतलब आई एम द यंगर वन। मेरा बड़ा भाई है एंड हम लोग दोनों मतलब वी वर टुगेदर एंड बहुत ज्यादा नॉटी हुआ करता था मैं। जो मेरे को बताया जाता था एंड मेरे को भी याद है मतलब मैं बहुत मेरे को आई वॉज वेरी वेरी ओवर एक्टिव एंड कभी भी कोई भी यहाँ पे घर पे है कोई भी टीवी देख रहा है जस्ट गो स्विच ऑफ द टीवी। आई जस्ट अभी तक आई रिमेम्बर एंड आई अभी तक आई मिस दी ओल्ड डेज एंड स्पेशली कोविड के बाद से तो अभी तो ऐसा लग रहा है पता नहीं 1.5 साल हो गया तो मैं तो जिस भाई के साथ बड़ा हुआ हूँ उससे मिल ही नहीं पाया हूँ 1.5 साल से बिकॉज ही इज इन जर्मनी एंड आई एम हियर। सो इट्स बीन इट वाज अ वेरी वेरी मतलब आई एक्चुअली रिमेम्बर माय ओल्ड डेज जब मैं बचपन में छोटा मतलब व्हेन आई वाज एक्चुअली वेरी यंग। जब मैं क्लास सेकंड थर्ड में था तो मुझे पढ़ाई नहीं अच्छी लगती थी एकदम। तो मैं हमेशा ये सोचता था पापा लोग को देखता था अपनी फैमिली में देखता था सब कोई बिजनेस करता था कि मुझे लगता था यार ये तो बहुत बढ़िया है। बढ़िया सुबह जाओ आराम से घर आओ एंड कितनी अच्छी लाइफ है कितनी इजी लाइफ है और हमें पढ़ना पड़ता है बार बार किताबें देखनी पड़ती हैं एंड लर्न करना पड़ता है सब करना पड़ता है। सो बट अभी जब once we've grown up once I've now at this point in life I actually feel कि वो जो दिन थे वो कितने ज्यादा अच्छे थे एंड whatever you wanted to do आप वो कर सकते थे मतलब you didn't have to think so much। अभी भी ऐसा नहीं है but उस टाइम पे there was nothing मतलब it was very easy and it was very very I really cherish those days and I actually miss those days। तो मतलब आई वॉज वेरी वेरी नॉटी बट अब मुझे पता मतलब बताया जाता है कि अब मैं एकदम चेंज हो गया हूँ पहले से। हाँ जी। सो या दैट्स Okay, that's a lot of story about your childhood. I mean, how you used to be. It was shown in your face that how you were enjoying talking about it. So it's really या nice. I was actually listening to that. But yeah, let's just go ahead with the rest of the part here. Now we'll discuss about your how you grew up to become, and जैसे एक एज हमारी आती है जहाँ पे हम थोड़े बड़े हो जाते हैं, हमारे थॉट्स चेंज होते हैं, जैसे आपके घर वाले आपके बोलने लगे कि आप चेंज हो गए हो पहले से। इन दैट अगेन इन अ मोर बॉलीवुड स्टाइल विल गेट टू नो यू अ लॉट मोर बेटर, जैसे एंड वी नेम्ड इट आज मैं ऊपर आसमान नीचे। सो एक ऐसा एज हमारे लाइफ में आता है जब हम वी अंडरस्टैंड दैट हाँ अभी तो हम उड़ने लगे हैं, अभी तो हमारे पर आ गए, वी गेट टू सी अभी अ लॉट आया ऑफ इट। नहीं है इससे जुड़ने वाला बट हाँ बट हाँ जी। So yeah. तो या सो आई जस्ट टेक यू थ्रू माय मैं बताता हूँ आपको। सो मतलब आई एम बोर्न ब्रॉट अप इन लखनऊ। इट्स अ प्लेस मतलब नॉर्थ इंडिया उत्तर प्रदेश का कैपिटल है एंड आफ्टर माय क्लास 12 आई डिड माय क्लास 12 फ्रॉम लखनऊ लमाटिया एंड देन यहाँ से मेरा जैसी पढ़ाई खत्म हुआ देन उस टाइम पे बहुत आई वाज इन अ फिक्स कि मैं करूँ क्या मतलब
आई डिडंट नो मुझे करना है, मतलब आई वाज ऑलवेज इंक्लाइंड टुवर्ड्स कि हाँ मेरा माय फुल फैमिली वाज ऑलवेज इनटू बिजनेस, तो मुझे लगा कि फैमिली बिजनेस में आई वाज नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड, तो मेरे को लगा पता नहीं व्हाट शुड आई डू। फिर मेरा मन करा कि मैं लॉ करूंगा, पता नहीं क्यों मेरा मन किया कि मैं लॉ करूंगा। मैंने लॉ की कोचिंग ज्वाइन करी, मैंने अपने क्लैट एग्जाम दिया, सब दिया, मेरा कॉलेज भी क्लियर हुआ। बट जब क्लियर हो गया उसके बाद मेरा मन हुआ कि मैं नहीं करूंगा लॉ, पता नहीं, आई डोंट नो व्हाई दिस हैपेंड। एंड फिर मैंने कहा नहीं, पहले मैं इकोनॉमिक्स करूंगा एंड देन अगर मेरा मन होगा देन आई विल गो इनटू लॉ, बिकॉज इट्स अ 3 year and 3 year thing. फिर then I gave it a shot and I just wanted to go to Mumbai. I don't know why. And then मैंने जो भी अपना entrances और मेरे merit के through I got into Jai Hind College Mumbai and got went there for my undergraduation and did my economics from there. So उसके बाद मतलब actually Jai Hind College and Bombay was actually a game changer for me, मतलब in my life, because being in Lucknow is a small town. मतलब if I compare it to Mumbai, if I compare it to Lucknow is okay, बड़ा शहर है, सब कुछ है यहाँ पे, but you know people generally move out from here जो लोग job करते हैं, because Lucknow में there are no job opportunities, मतलब you will not find any big companies or you know just good jobs and all over here. तो धीरे धीरे when I went there मैंने वहाँ पे चीजें देखी, I did a lot of things and वहाँ पे मैंने धीरे धीरे मेरा stock market में interest develop हुआ, I did some started trading, I did a lot of other things also. So धीरे धीरे मतलब मैंने देखा कि जो हमारा environment था वो पूरा एकदम बदल गया था वहाँ पे जाकर, वहाँ बॉम्बे में जाकर everything just changed. So जब 3 साल खत्म हुए थे तो फिर उसके बाद फिर से अगेन यही सेम फिक्स में आ गया मैं कि अब क्या करना है। बट मेरे भाई मेरे सब लोग कहते नहीं, बिना मास्टर्स के तो कुछ नहीं हो सकता, मास्टर्स तो करना ही है एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड एवरीथिंग। बट आई हैड दिस आइडिया इन माइंड जो मेरे को वहाँ पे, वो भी एक बार हम लोग रात में पार्टी करने गए थे, जाते रहते थे जब वहाँ बॉम्बे में, तो एक जगह पे देयर वाज दिस कंसेप्ट व्हिच आई रियली लाइक, उसको मैंने थोड़ा सा और थिंक करके आई डिड माय रिसर्च एंड एवरीथिंग, तो उसके ऊपर मेरे पास एक ग्रैब लॉयल्टी का ही आइडिया आया था वहां पर ही, जो मैंने उस टाइम सोचा था कि आई विल स्टार्ट इन बॉम्बे, बट देन मुंबई वाज नॉट अ मार्केट टू स्टार्ट बिकॉज इट वाज ऑलरेडी वेरी कॉम्पिटिटिव एंड लॉट ऑफ कॉम्पिटिटर्स वर देयर। फिर हम धीरे धीरे करके, और देन जब एक बार मेरा खत्म हुआ ग्रेजुएशन, तो फिर मैंने फिर फाइनली सोचा कि नहीं अब तो मैं एक बार ये ट्राई करूंगा, और अगर होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो देखेंगे। एंड वहां से उसके बाद आई थॉट कि नो लेट्स गो बैक टू लखनऊ बिकॉज लखनऊ इज अ वर्जिन मार्केट एंड ऑब्वियसली जहाँ बड़े होते हैं वहाँ पे आपके कॉन्टैक्ट्स बहुत होते हैं, नेटवर्क होता है, एवरीथिंग इज देयर। So that brought me back to Lucknow, leaving my MBA, everything behind. I didn't do anything. And ये सोच कर आया था कि 1 साल करूँगा, and then again I'll go back for my MBA. I have to do my post graduation because you know just for the sake of it, because people say कि यार post grad भी नहीं है और ये भी नहीं, but then फिर वो हुआ नहीं। When I came back to Lucknow, I started the venture Grab Loyalty, and मतलब मैंने इतना सोचा नहीं था, but I got a really good response and we onboarded more than 1,000 clients in not less in a year, maximum in a year, and then slowly and steadily started growing and doing added a lot of other things, other ventures to it, and so actually it was मतलब अभी धीरे धीरे अब वो एमबीए की स्टेज भी खत्म ही हो गई है कि अब तो आई डोंट नो अभी होने वाला है कि नहीं, अब 4-5 साल हो गए हैं। हाँ Yeah, जी, right. सो या Yeah. Again, we got to know a lot. This was basically everybody's life. Anyway, so moving on, हम लोग फिर से थोड़ा और जानते हैं आपके बारे में. And again, in a little more Bollywoody style, which is जिंदगी जिन्होंने सजाई है मेरी, which is basically knowing you again a little more a step ahead. आपको और थोड़ा जानेंगे. Talking about your life hindrances, what you've faced, how you've achieved them, and all that things. सो मैंने काफी कुछ तो बताया आपको कि कैसा, मतलब आई एक्चुअली ओपनड अप अ लॉट कि हाँ उसके बाद भी। सो मैं बेसिकली लाइफ में मतलब मेरे को थोड़ी चीज़ों का हमेशा से बचपन में भी मतलब आई वाज नेवर अ वेरी आई वाज नेवर अ टॉपर, आई नेवर वांटेड टू स्टडी इतना ज़्यादा, आई वाज नॉट इंक्लाइंड टुवर्ड्स स्टडीज, मतलब ठीक है अच्छा लगता था, बट आई नेवर, बट जब मैं एक बार फिर बाद में धीरे धीरे फिर मैं आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू मी, आई एक्चुअली डोंट नो व्हाट हैपेंड टू मी क्लास 11th 12th में जाके व्हेन आई ऑप्टेड फॉर द सब्जेक्ट्स आई एक्चुअली वांटेड, बिकॉज होता क्या क्लास 10th तक इट्स ऑलवेज कि हाँ साइंस पढ़ना ही है, ये पढ़ना ही, बट 11th 12th में आई ऑप्टेड फॉर कॉमर्स, सो देन आई एक्चुअली डेवलप्ड इंटरेस्ट, आई डोंट नो कैसे। फिर उसके बाद आई इट जस्ट वेंट ऑन, द जर्नी वाज ऑन, बट व्हाट आई रियलाइज इन दिस वाज कि सबसे ज्यादा मतलब पता नहीं व्हेन आई लेफ्ट माय कंफर्ट जोन, सो द मोस्ट सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि आई वाज इन माय कंफर्ट जोन व्हेन आई वाज इन लखनऊ, where I was staying with my family. I got really good food, always getting good food, getting whatever I want. So that was, I think it is very important. It was very important for me to get out of here. And
everyone supported me in doing that, and so I think moving out of Lucknow, so that was a very big, I can say it was a boom for me, or it was game changer. एंड मैं मतलब अगर नहीं जाता मैं यहाँ से तो मुझे नहीं लगता कि मुझे भी लगता है फिर आज मैं अपने फैमिली बिजनेस में होता, जो कि खराब नहीं है, बट मतलब आई ऑलवेज वांटेड टू डू समथिंग डिफरेंट, एंड सो दैट्स हाउ आई एम जस्ट ट्राइंग टू डू माय बिट. अब देखते हैं कितना होता है कितना नहीं होता है, बट यही होता है सबसे ज्यादा जो मैंने फेस किया लाइफ में, कि मैं मेरा कंफर्ट सबसे ज्यादा मेरे को खराब करता था, जो मैं आज तक अब ट्राई करता हूँ किसी भी तरह मैं वापस उस कंफर्ट जोन में ना जाऊँ, बिकॉज मुझे पता है इट्स अ ट्रैप. अगर मैं घुसा एक बार तो देन इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट आउट ऑफ देयर. Totally, totally. I mean, whatever you just shared right now about the comfort zone thing, I think I can totally relate to that. Living outside of the house and everything, totally understandable, because when you're at your family, I mean, at your place with your family, like they're always pampering you, giving you food on time, bedtime tea, घर से आओ, घर पे आओ, खाना खाओ, सब कुछ एक साथ एक टाइम टेबल में होता है. बट व्हेन यू आर लिविंग अलोन, यू आर डूइंग एवरीथिंग खुद से, कि हाँ चलो खुद घर जाके खाना बनाना पड़ेगा. और सबसे बड़ी बात ये है, जब मैं यहाँ पे था, मैंने वाज इन लखनऊ, सो इतना ज्यादा मतलब इतना ज्यादा चीजें यहाँ पे, इट वाज इजी, लाइफ वाज सो इजी ओवर हियर दैट मतलब यू डिडंट हैव टू डू एनीथिंग. तो मतलब एक टाइम आ गया था कि मेरा वेट 120 किलो हो गया था. सो आई वाज 120 kgs एट मतलब देयर वाज अ टाइम इन माय लाइफ. सो द मंथ आई लेफ्ट फॉर बॉम्बे, मतलब मैं 4 महीने के बाद लखनऊ वापस आया था. एंड पता नहीं वहां जाके होता है ना, जब आप अपना एनवायरनमेंट देखते हो, आप अपनी देखते हो आसपास की वाइब्स, मेरा वेट 70 किलो हो गया था. सो आई एक्चुअली लॉस्ट almost 50 kgs in like 3-4 months. So वो that was, I think वो सब होने की वजह से ही चीजें थोड़ी बेटर हो पाई. I think that was a big impact in your life, that you understood कि नहीं मुझे ये लाइफ से चाहिए और वो नहीं चाहिए, वो रहेगा बट मुझे चाहिए ये है. So it was a big time of type of understanding for you that this is what I want from life right now and I'm going to fight for it. And that's what you have become right now. You're such a big entrepreneur and we all can see that. So it's a big process. अभी तो चल रहा है, मैं सब कुछ. Yeah, it's still going on. You have a long way to go. Right. Yeah. Okay, so moving on, then again, one more thing that I wanted to know about, that is in a Bollywood style, that we all have friends in our life. I mean, friends are something which is very important and we cannot go away. I mean, that is something उसके सिवा हम चल नहीं सकते. We all need friends. हमेशा कहाँ हो, क्या कर रहे हो, चलो ये करते वो करते. So again, in a more Bollywoody style, we'll get to know a lot about them, which is तेरे जैसा यार कहाँ, which I can totally understand. You can relate to it. You're smiling. So please tell us something about your friends, your friends group, your friend circle. I mean, that one friend you can't go without. So we love to know that. जैसा आपने ये लाइन यूज करी है, तो हमारा जो कोर ग्रुप है वो ये, तो बेसिकली अगर हम लोग कहीं भी होते तो ये गाना जरूर बजवाते हैं, तेरे जैसा यार कहाँ, और हम लोग सब डांस करते हैं इस पे. सो मेरा मतलब आई एम वेरी लकी टू हैव वेरी वेरी गुड फ्रेंड्स, टचवुड. एंड मतलब मेरा मेरे कॉलेज के फ्रेंड्स एंड माय स्कूल फ्रेंड्स, सो सबसे ज्यादा क्लोज मैं अपने स्कूल फ्रेंड्स से ही हूँ अभी भी. सो बहुत सारे उसमें से लोग लखनऊ में हैं अभी भी. अराउंड आई हैव अ कोर ग्रुप ऑफ अराउंड 7-8 पीपल इन लखनऊ, एंड देन हम लोग का बहुत बड़ा ग्रुप है, इनफैक्ट जो माय स्कूल फ्रेंड्स है 10-15 पीपल, एंड वी आर वेरी वेरी क्लोज टू ईच अदर. सो मतलब कभी भी एवरी वीक वी कीप मीटिंग, एंड आई थिंक वही एक फोर्स होती है जो आपको आगे लेके चलती है. आप जब इतने लोगों से मिलते हो, एंड when you discuss about your life, your problem, supposing if I'm facing a problem with a client, so I will definitely not call up Turant, but अगर मैं मिल रहा हूँ, if I'm going on a small drive with them, once you discuss, you know it's very, मतलब I have friends जिसके साथ मैं पूरे discuss कर सकता हूँ चीजों को. Even if it's my personal problem और कुछ भी है, तो मतलब मेरे को लगता है अगर मेरे friends ना होते तो मैं नहीं होता है, because वो तो मतलब you need some very good people in your life to let your heart out and be with them and enjoy with them. Whatever you want to do, they know you. मतलब आपको उनके सामने फेक नहीं रहना पड़ता है. उन्हें पता है कि हाँ भाई ये मिलन ऐसे ही रहता है. So it's मतलब I think it's मैं बॉम्बे में इनफैक्ट मैं शेयर करूंगा कि we were around 4 people staying in a flat in Bombay. So मेरा जो बेस्ट फ्रेंड है उसका भी लकीली मेरे कॉलेज में एडमिशन हो गया था, एंड वी वर स्टेइंग टुगेदर फॉर 3 years in the same flat. So that was life, it was really life changing for me, because उसको मतलब I actually look up to him. मतलब वो he's a very successful person right now. He's in the jewelry business, and मतलब I actually used to look up to him, and मैं उसको देखता था कैसे कर रहा है. मैंने उससे बहुत कुछ सीख लिया उस 3 साल में, एंड मैंने बहुत सारा उसका स्टाइल ऑफ वर्किंग बहुत कॉपी भी किया है मैंने, बट एंड
आई थिंक फ्रेंड्स तो ऐसी चीज है जो जिनके बिना लाइफ का कोई फायदा नहीं है, बिकॉज काम करना इज नॉट अ थिंग, मतलब केवल काम करके कुछ नहीं होने वाला है. एंड ऑफ द डे आई थिंक व्हाट आई फील इज कि अगर आप कमा भी रहे हो और काम भी कर रहे हो, यू नीड टू enjoy and you need to have a good life. I believe in having a good life. और डेफिनेटली काम तो होना ही होना है, मतलब अगर जिंदगी अच्छी नहीं है, आप जिंदगी में सुकून नहीं है और आप पॉजिटिव नहीं हो लाइफ में, नेगेटिविटी को हटाना जरूरी है. व्हाट आई फील एंड फ्रेंड्स आर फॉर दैट. सो that's yeah. Yeah, friends are absolutely very important. I mean, किससे शेयर करेंगे जब there is some kind of issues, क्योंकि हर चीज तो you cannot go to your parents and be like ये हुआ है. So we need that one friend in our life जिसके साथ we can sit and talk कि ये हुआ है, ऑफिस में ये हुआ है, घर पे ये हुआ है, लाइफ में ये चल रही है. So yeah, totally understandable that way. Thank you so much for sharing that with us. Again, in the more Bollywood style, we'll go to a different concept altogether here. So अभी हम थोड़ी और जानकारी लेना चाहते हैं आपके बारे में, which is in a बॉलीवुडी अंदाज, which is वही सिकंदर कहलाता है, हारी बाजी को जीतना उसे आता है. So this is basically me, us, getting to know you a lot better here. कि आपके जो कैसे आप सब कुछ खुद से कर लेते हैं, एंड देन ऑल द अचीवमेंट्स एंड देन पैंग्स जो आप आप जो करते आए कि हर एक चीज से निकलने के लिए दैट वन गेटवे यू थिंक दैट या ये करूंगा तो हो जाएगा. एक कोई सिचुएशन में आप फंस गए तो आपके दिमाग में चलता नहीं मैं ये करूंगा तो मैं निकल जाऊंगा यहाँ से. सो व्हाट इज दैट वन थिंग दैट यू डू व्हेन यू फाइंड योरसेल्फ इन अ वेरी क्लमजी सिचुएशन? मतलब मैंने एक चीज नोटिस करी कि लाइफ में मतलब बहुत सारे तरह के हम लोग ने चीजें करी, सब कुछ किया, बट हमेशा एक अंदर से पता नहीं क्यों एक फेथ रहता है, कॉन्फिडेंस रहता है कि ये हो जाएगा, मतलब प्रॉब्लम नहीं आएगी. और आई थिंक वो एक पॉजिटिविटी है मेरे अंदर, या फिर आई डोंट नो, बहुत मैं भी कुछ चीजें ऐसी करता हूँ जिससे पॉजिटिविटी और आए. तो वो सब चीजें, वो फोर्सेस मेरे को लगता है जो मतलब आई नेवर गेट इनटू दैट थिंग कि ये नहीं होगा, मतलब आई नेवर थिंक इन दैट वे. तो जैसे अगर मुझे काम भी है, अगर कोई भी चीज है, फॉर एग्जांपल इफ आई एम डूइंग सम क्लाइंट इज आफ्टर मी, और तो अगर कुछ होता है तो आई समहाउ फाइंड अ वे आउट टू डू इट. मतलब आई जस्ट मतलब मेरे को एक ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो कि बहुत सारे लोग फेस भी करते हैं कि मतलब मैं मतलब अगर क्लाइंट ने बोल दिया है या कोई भी ऐसी चीज है तो मतलब आई जस्ट वांट, आई हैव टू गेट इट डन, बी इट व्हाटएवर हैपेंस. सो वो गलत बात भी एक है, बट देयर आर सर्टेन थिंग्स वो मैं करा लेता हूँ. मतलब ये मेरे को लगता है मेरे अंदर किसी तरह की वो है कि कुछ भी हो जाए, कोई हो ना हो, मैं करा लूंगा. सो वो एक मेरे को चीज ना मेरे को अंदर से कॉन्फिडेंस दे देती है कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, कर लोगे तुम, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो दैट इज मतलब बाकी तो आई थिंक नथिंग, ऐसा और कुछ तो है नहीं. हाँ जी. Okay, got it. Yes, that was something interesting we got to know. So, few more details about you. And so, अच्छा ठीक है. तो ये जो आपने अभी समझाया, that is more of a confidence and more of you कि हाँ मुझे पता है मैं कर लूँगा, तो मुझे ये सोचने की जरूरत नहीं है. We'll get it done. You just keep telling yourself, no, we are going ahead with this. We'll get it done. We'll get it done, and that's how you go ahead with everything in your life. So that is interesting. That is something very interesting we got to know about you. So moving on to our next to the next way of knowing you better, which is जाने वाला पल आने वाला है. Again, in a little more Bollywoodi andaz, we are coming to an end with this. So how do you go ahead in life? I mean, what is your saying ki, what is that one saying that you follow in your life? कि हाँ ठीक है, मतलब this we talked about कि आप हर एक सिचुएशन से कैसे निकलते. This is that one thought in your life that you keep in your head कि नहीं ये यही मैं करूंगा. I mean, this is my go to action always. No matter what happens, this is what I'm going to follow. ऐसा लाइफ में लगता है कि सब कुछ इजी हो रहा है, बट ऑब्वियसली नहीं होता है. बहुत बार ऐसा हमारे मतलब लाइफ में बहुत बार फेजेस आते हैं जहाँ पे लगता है कि यार क्या करें, अब तो पता नहीं हो क्या रहा है, हाउ डू वी गो अहेड, हाउ व्हाट डू वी डू. सो आई हैव एन एल्डर ब्रदर हु इज मतलब जो मेरे मतलब ही इज ऑलवेज सीन मी सिंस चाइल्डहुड. मेरी सारी बेवकूफियां हैं, मेरा सारा चीजें, तो मतलब ही इज आल्सो he's the vice president in a company doing marketing only. So matlab mere he's like my go-to person if there's anything. So matlab I always discuss it with him, and he's always there to help me, guide me, because obviously because the kind of business we are in, मतलब हम अपने पेरेंट्स का भी वो नहीं ले सकते कि वो लोग क्या बताएंगे, बिकॉज उन लोग को भी इतना नॉलेज नहीं है इन सब चीज़ों का. सो ही इज लाइक माई गो टू पर्सन, एंड अगर कोई इशू है, मतलब आई एम वेरी वेरी लकी टू हैव अ वेरी सपोर्टिव फैमिली. दैट्स लाइक बहुत ही ज्यादा जरूरी. तो मेरे को ये लगता है कि व्हाट आई फील इज कि मैं
एक ही चीज बस माइंड में लेके चलता हूँ कि भाई पॉजिटिव रहता हूँ मैं, और अपने आप को बस, नेगेटिविटी बहुत आती है माइंड में, बट आई फाइंड कभी कभी होता है ऐसा ही चीजें, बट आई फाइंड वेज टू टेक इट आउट एंड गेट पॉजिटिव इनटू माय पॉजिटिविटी इनटू माय माइंड। और किसी भी तरह मेरे को एक ही चीज लगती है कि करना है तो करना है, और उसका कोई ऑप्शन तो है नहीं, देयर इज नो दिस थिंग। एंड डेफिनेटली आई हैव माय पर्सनल गोल्स, आई हैव listed down everything, and I am just moving ahead with that. I have a plan. I have made a plan, 10-year plan. Let's see where I go with that. But it's going good right now. Let's see how it goes. And मेरा लाइफ का एक ही चीज है बस, अगर ठान लिया है तो करना है। अभी तक तो हो रहा है, अब देखते हैं आगे जाके होता है कि नहीं होता है। So this is the मतलब मेरे को यही लगता है, अगर आप जो कहते हैं, मतलब कि अगर आपने सोचा है चीज को, तो you will find out a way to just do complete the entire thing. So हाँ जी। Okay. So, sir, what is that message that you would like to give us to, go ahead in life? I mean, एक वो मैसेज जो आप हमेशा किसी को बोलते हो कि ये करोगे, so this is one message that it's your identification. I mean, you tell this to everybody that this is your go-to action in life. जैसे you follow this the way you share. What would be that one message you would like to share to everybody to help them go मैं ahead? एक ही चीज बोलता हूँ, हाँ मैं तो एक ही चीज बोलता हूँ, जैसे मैंने अपनी लाइफ में जो करा, कि मेरे को, मतलब मैंने पोस्ट ग्रेड और ये सब नहीं किया, जबकि मेरे को काफी लोगों ने, मेरी फैमिली में सब लोग ने बोला, तो मैंने वो किया जो मुझे चाहिए था और जो मेरे को अच्छा लगता था। तो मैं भी एक ही चीज बोलूंगा कि भाई अगर किसी को कोई चीज पसंद है तो उसे वो फॉलो करना चाहिए। एंड एवरीथिंग, मतलब if you do it by your, मतलब if you're doing it with your full this thing energy and with the full if you give your full, and I don't think there is anything that can actually stop anyone. So that's the same thing I follow, मतलब in my life, कि ऐसी कोई चीज नहीं जो मैं नहीं कर सकता। So that is the same, that's what I tell people, कि भाई अगर करना है तो करो, and whatever you want to do, you should find it out, मतलब that is the, yeah. That was actually very beautiful talking with you, sir. And thank you Thank you so so much for being on with us on a Sunday morning. I mean, it's a Sunday and we are interviewing you to talk about your yeah. life and everything. Thank you so much for being Yeah, on Chai thank Wali Chat with Paulumi, thank you. and have a nice day ahead. Thank you. Thank you. Thank you.